ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੁਖ ਉਚਰੇ ਸਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਧਰੋ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਬੇਰਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਹਾਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗਰਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ। ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਐ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਈ ਸੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਥ। ਇਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਥ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਥ। ਸੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਥ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਥ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਚ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕਹਾਣੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਥ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ नहीं होते है। हकीकत ते है। हकीकत सच्चाई अरबी का लफ्ज है हक। हक दे अर्थ सच। जैसे कि भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं हक हक अंदेश
गुरु गोविंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह। बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। तो मनुख दे प्राणां विच जदों दा मनुख है, मनुखी होंद आलमे वजूद दे चाई, इहदे प्राणां विच प्यास ते है ऐसा जीवन जिस विच मौत ना होवे, ऐसी शक्ति जो कदी कमजोरी विच ना बदले, ऐसा रस जो कदी बेरस ना होवे, ऐसा धन जो वधदा ही जाए ते कतई घटे ना, ऐसा रुतबा, ऐसी इज्जत जो हमेशा वधदी ते रहे पर कदी बेइज्जती ना होवे। तो उस परम पद का ना ही परमात्मा है, उस परम धन का ना ही परमात्मा है, उस परम रस का ना ही परमात्मा है, उस परम शक्ति का नाम ही परमात्मा है, उस परम रस का ना ही परमात्मा है। ये हर एक दी तलब है, ये हर एक दी चाहत है। रस बेरस ना होवे, जीवन मौत ना होवे, धन निर्धनता ना होवे, ताकत कमजोरी ना होवे। ये ते हर एक दी मंग है, ये ते हर एक दी चाहत है। इस वास्ते मेरे देखे रूहे जमीन ते मनुखी दुनिया च नास्तिक कोई भी नहीं, ईश्वर तो इनकारी कोई नहीं, क्योंकि परम जीवन ते सारियां नूं चाहीदा है। तो परम जीवन ही ते परमात्मा है। परम धन ते सारियां नूं चाहीदा है, जो वधदा ही जाए कदी घटे ना, तो उस परम धन का ना ही ते परमात्मा है। ऐसी शक्ति चाहिए है जो सदा बनी रहे और वधदी रहे ते कदी घटे ना, कमजोर ना होवे। तो उस परम शक्ति का ना ही परमात्मा है, परम रस का ना ही परमात्मा है। और चाहत भी सारियां दे अंदर है। तो नास्तिक कौन है? नास्तिक कोई भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, एक दी परमात्मा दी तलाश सही है, एक दी गलत है, बस इन्नी गल है। जिस दी गलत है असीं उसे नूं मनमुख कह दिंदे हां, जिस दी सही है असीं उसे नूं गुरमुख कहंदे हां। जिस दी खोज सही है उसे नूं साधक आख्या जांदा है, साधु कहा जांदा है, भगत कहा जांदा है। और जिस दी तलाश गलत है उसे नूं नास्तिक कहा जांदा है, उसे नूं मनमुख कहा जाता है, उसे नूं मूड़ कहा जाता है। अगर तलाश गलत है, रास्ता गलत है, तो मनुख जितनी तेजी नाल जाएगा मंजिल तो दूर ही जाएगा। सवाल तेजी दा नहीं, सवाल दिशा दा है। दिशा की है, जा केड़े पासे रहा। अगर वो आखे मैं ते बहुत तेजी नाल चल रहा, बहुत तेजी नाल, मंजिल ते अजे तक भी नहीं आई, तो कहा जा सकता है रास्ता गलत होवे ते मंजिल नहीं आउंदी। प्राणां दे च प्यास परमात्मा दी है, तलाश दा ढंग गलत है, खोज दा ढंग गलत है, जिस कारण करके अनंत जन्मां तो मनुख परम रस, परम शक्ति, परम जीवन तो वांझा रह जाता है। उन प्राणां दे च प्यास है, तड़प है। मनुख सही ढंग दी खोज कर सके, इसकी प्राप्त कर सके, गाहे बगाहे अवतारी पुरुष संत जन पैगंबरी पुरुष मनुख दे मददगार बनते रहे ने, सहायक बनते रहे ने। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज इस युग दे अवतारी पुरुष, इस युग दे मालक,
इन्हां ने अपना अनुभव सामने रखा है कि उस सच की प्राप्ति किवें होवेगी। मैं फिर अर्ज करां, सच परम रस है, सच परम शक्ति है, सच परम जीवन है, सच परम सुहप्पण है, सच परम धन है। सारे रस सारियां शक्तियां दा संग्रह करके किसी एक शब्द दे च बयान करना होवे सच, सच दे च सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। उंज मूल रूप दे च मनुख नूं जो रसां दा बोध है वो पंज ही ने, छेवां नहीं है। इनू कुछ वेख के रस मिलता है, कुछ सुन के रस मिलता है, कुछ चख के खा के रस मिलता है, कुछ सूंघ के रस मिलता है, कुछ स्पर्श करके रस मिलता है। इस तो बिना भी कोई रस है इसनू पता नहीं है। और शायद मनुख कह भी सकता इस तो बिना कोई रस हो भी नहीं सकता, है भी नहीं, ऐसा वो कह सकता है। अगर इस तो बिना होर रस है तो फिर उसनू केड़ा इंद्रा मानदा है, क्योंकि मनुख दे कोल पंज ही ज्ञान इंद्रे ने और यही पंज रस लेंदे ने। निखेड़ा करन तो पहले मैं अर्ज करां, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने सच महारस है। सिर्फ महारस नहीं, महाशक्ति है। सिर्फ महाशक्ति नहीं, महासुगंध है। यानी सारे रसां नूं संग्रह करे, सारी शक्तियां नूं संग्रह करिए। तो मैं फिर अर्ज करां, एक शब्द दे च बयान करना होवे सच, सत, सत दे सब कुछ आ गया, हक दे सब कुछ आ गया। अरबी दा लफ्ज हक, पंजाबी उर्दू दा सच, सच दे सब कुछ आ गया। करीबन करीबन भारत दे तमाम ऋषियां मुनियां अवतारां ने कहा सत, इस्लाम दे पैगंबरी पुरुष ने कहा हक। वो हक है, भाव सच है। एक दफा मैं फिर अर्ज करां, सत दे अर्थ ने जो है, मिथ दे अर्थ ने है नहीं मेरी कल्पना है नहीं मेरी सोचनी है नहीं मेरे विचार ने, है नहीं सिर्फ मेरा ख्याल है, मेरा तखय्युल है। मिथ तो आख्या मिथ नहीं है, सत्य है। वो जो है मिथ नहीं है, सत्य है। तो फिर वो की है, तो फिर उसकी व्याख्या गुणां दा सागर है, रसां दा सागर है, शक्ति दा सागर है, सुअपण दा सागर है। उसकी प्राप्ति किवें होवे और अज तक मनुख उस तो वांझा क्यों है। और जद ये मनुखा दे ही उसे ही परम रस नूं प्राप्त करन लई है। बाकी इंद्रियां दा रस पशु जूनां दे च भी किसी हद तक इंज कह लीए मनुख माणदा रहे। कहंदे अखां दा जितना परबल रस पतंगे कोल है, परवाने कोल है, मनुख इतना नहीं मान सकता, क्योंकि उसकी सारी शक्ति अखां दे च ही है। और रूप तो निछावर हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। रसना दा जितना परबल रस मच्छी कोल है, मनुख कोल नहीं है। कहते जबान दा ओ जितना रस मान सकती और मान लेंदी है, मनुख नहीं मान सकता। स्पर्शता दा जितना रस, खलड़ी दा जितना रस हाथी मान लेंदा है, मनुख नहीं। सुगंध दा जितना रस एक भौरा मान लेंदा है, लीन हो जाता है कमल दे च। पंखड़ियां बंद हो जांदियां ने, फस जाता है। दिसदा भी पिया पंखड़ियां बंद हो रही, नहीं उड़दा, क्योंकि सुगंध दे च लीन जुड़ गया।
और जब पूरियां पंखड़ियां बंद हो जांदियां तो तड़प तड़प के मर जांदा है। सवेरे कमल दे फुल दे चों उसदी लाश निकलदी है। गुरु नानक ने इसका बड़ा सोहना जिक्र भी किया है। तो नासका दा जितना परबल रस भौरे कोल है, मनुख कोल नहीं। कन्ना दा जितना रस गुरबाणी दे कथन अनुसार हिरन दे कोल है, मनुख कोल नहीं है। हैगे ने ये पंजे रस मनुख कोल, पर उतने नहीं जो कन्ना दा रस हिरन मान लेंदा है, जो अखां दा रस पतंगा मान लेंदा है, जो नासका दा रस भौरा मान लेंदा है, जो खलड़ी दा रस हाथी मान लेंदा है और जो जबान दा रस मछली मान लेंदी है, मनुख नहीं। मनुख दी चेतना बिखरी हुई है, मनुख दा मन बिखरे होया है, वंडे होया है। वो किसी रस दे च भी पूर्ण नहीं होंदा। अगर एक इंद्रिय दा रस मान रहे तो उत्थे भी उसका मन दुबाजरा होंदा है, दुबदा चाहुंदा है, किसी होर पासे भी आउंदा है, पूरी लीनता नहीं होंदी। पशु भौरे या हिरन या हाथी उस दे च पूरे लीन हो जाते, पतंगा पूरा लीन हो जाता। तो इंद्रियां दा रस दा जो बोध है और उसदे जो संस्कार ने, उते इंज कह लो करोड़ां दफा मनुख पशु जूना च भी इकट्ठे करदा रहे और उन्हां ही संस्कारां तो मुतासर होकर कई दफा ख्याल बन जाता है बस रस यही हो सकता है, होर नहीं। क्योंकि पता नहीं कितने तार्किक लोगों ने मैनू इस तरह आख्या है भी कहंदे हो महारस है, तो की है फिर? किस इंद्रिय दा रस है? अखां दा रस है, कन्नां दा रस है, नासका दा रस है, खलड़ी दा रस है, रसना दा रस है। पता है वो कहंदे ने अगर नाम महारस है तो वाहिगुरु आखदे हैं तो कोई रस नहीं, राम आखदे हैं तो कोई रस नहीं। अगर ये सुगंध है, नासका दा रस है, तो वाहिगुरु आखदे हैं कोई महक नहीं, कोई सुगंधी नहीं। अगर वाहिगुरु महारूप है, परम श्रृंगार है, परम सुअपण है, तो इस तरह का तो कोई बोध नहीं। तार्किक लोगों को दलीलां ने इसनूं मैं बहुता खुलासा ना अर्पण करा तुहाडे सामने, क्योंकि कई दफा कच्चे दिमाग वाला उस दे फस जाता है। केशव चंद्र दियां दलीलां ने, बंगाल दा प्रसिद्ध नास्तिक कहंदे ने, भगत लोग आख रहे ने, कहंदा इस तरह बई महारस है, महारस है, उसका नाम महारस है। वो महारस है जैसे किरण दे सूरज झलकदा है, एक एक रस दे परमात्मा झलकदा है और वो रस महारस है। केशव चंद्र कहंदा ये भी मिथ है, कल्पना, सिर्फ सोचनी है, सिर्फ ख्याल है। अगर वाकई वो कन्ना दा महारस है तो वाहिगुरु सुन दिया, राम सुन दिया वो महारस बनना चाहिए, नहीं बनता, ऐसा तो कुछ भी नहीं। भारत दे ऋषि मुनिया ने जो दलील दी है, अगर वो महारस नहीं बरसिया तो उसका कारण है मन मैला है, इस करके रस नहीं आया, मन संबंधित नहीं होया। अगर मन संबंधित ना होवे तो अखां कन रसना रस नहीं मान सकते, क्योंकि मन दे संबंध करके अखां पूरन वेखदियां, कन पूरे सुनते ने, रसना पूरी बोलती है। नहीं ते मन दा हटना ते मनुख दूसरे तो पुछदा है, मैं की आखिया जरा दसना, हद होगी, आखिया तू तो तेनू पता नहीं, कहंदा जरा फिर आखो, मैं नहीं सुनिया,
क्योंकि मेरा मन ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं सी। मैं नहीं ਵੇਖ सकिया क्योंकि ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मेरा मन सी। मैं घर नहीं सी, मैं घर ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ मन नहीं सी, ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। मन मैला है, इस करके महारस नहीं बनता। और वो महारस रसां दा संग्रह है, हर तरह का रस है। रस क्यों नहीं आया? मन मैला है। अगर मन मैला है तो इसका इलाज जो भारत के प्राचीन ऋषि मुनिया ने लभ्या भी पहले पहल तां इंज करिए, जिथे जिथे दरियावां दे कंडे ते बैठ के, सरोवरां दे कंडे ते बैठ के इशनान करदे होया, जप करदे होया जिन्हां ने निर्मलता प्राप्त कर ली, उत्थे इशनान करो, उस फिजा दे च जीवो, उस माहौल दे च जीवो। इस तरह इशनान करदियां वो मैल धुल जाएगी। तो मैं फिर अर्ज करा, वो मैल की है, इसनू भी समझिए। महाराज ऐसा कहते हैं, हों मैला मल कबहू न धोवे। मन मैला है लोभ करके, मन मैला है आहंग करके, मन मैला है वासना करके, मन मैला है मोह करके, मन मैला है क्रोध करके। और तो कोई मैल ही नहीं है, मन दी ते होर कोई मैल नहीं है। तन दी मैल है, पानी नाल धुल जाती है। पानी नाल लोभ नहीं धुलदा, पानी नाल हंकार नहीं धुलदा, पानी नाल वासना नहीं धुलदी, पानी नाल क्रोध नहीं धुलदा। हों मैला मल कभू न धोवे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज दा बड़ा कीमती इस संबंध विच वाक है। मैल ते यही है, और इसनू दूर करने का ढंग भी सतगुरु दसते ने, पर मैं पौड़ी दे दायरे च ही बयान करा। मैल यही है, परमात्मा महारस है, मन मैले होने करके रस नहीं बन रहा। रस कैसा है? हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सुगंध धरती दी प्रकृति है। धरती एक तत्त है, इस तत्त दी प्रकृति मंदे ने सुगंध, महक। पानी दूजा रस है, जो है तत्त है, इसकी प्रकृति मंदे ने रस। किसी चीज दे च रस नहीं हो सकता अगर पानी नहीं। धरती तो बिना किसी च भी महक नहीं हो सकती। अग्नि एक तत्व है, अगर अग्न करके रूप है, जितना भी स्वप्न है अग्नि तो बिना नहीं हो सकता। जो कुछ भी स्वप्न दिखाई देवे रोशनी है, चाहे वह फुल्लां च झलके, फल्लां दे च झलके, पशुआं दे च झलके, मनुखां दे च झलके, सोना चांदी दे च झलके, हीरे मोतियां दे च झलके, स्वप्न किधरे भी झलके, रोशनी है। ये अगन तत्त दी प्रकृति है। इसनू विद्वान, धार्मिक विद्वान साडे देश दे पंज तत्तां दीयां प्रकृतियां। अगन तत्त दी प्रकृति है कि सुहपन, रोशनी है। पवन तत्त दी प्रकृति है संगीत, गीत, कन्ना दा रस, महारस। ये पवन तत्त दी प्रकृति है, संगीत, शब्द, नाद।
इसे तरीके दे नाल अवतारी पुरुषां ने वख-वख चोण कीती है। कहंदे ने मुहम्मद साहब सुगंध दे रसिया सन। मुसलमान कितना भी गरीब क्यों ना होवे सुगंध लाएगा, सेंट लाएगा। ईद दे दिनां च एक दूजे नूं सेंट लांदे ने, खुशबूआं लांदे ने। मुहम्मद साहब दिन दे कई कई तरह दीयां खुशबूआं बदल बदल के अपने तन ते लगांदे सन। सुगंध दे रसिया सन। सुगंध धरती तत दी प्रकृति है, मिट्टी दी प्रकृति है। तो सजदा सिर नूं मिट्टी ते रखना उन्हां दे च महान हो गया। 5 वक्त नमाज सैकड़े दफा सिर मिट्टी ते रखो, जमीन ते रखो। मुसलमान काबे दी, खाना काबे दी मिट्टी ले आउंदे ने और उसदी रोड़ी बना के अपने अपने देशां च ले जांदे ने। जद नमाज पढ़दे ने उहनूं सामने रखदे ने, उस मिट्टी ते ही सजदा करदे ने, बार बार करदे ने। चरण धूड़ नूं मस्तक ते लाना उन्हां दे च भी महान है और मस्तक नूं मिट्टी ते रखना ये उन्हां दी साधना है। सुगंध धरती दी वह प्रकृति है। कहंदे धरती नूं आधार बना के मुहम्मद साहब ने खुदा तक पहुंचण दी कोशिश की थी। मनुख हंकारी बड़ा सी, धरती पैरां दे थल्ले। अरबी मनुख कठोर बड़ा सी, सख्त बड़ा सी, जालिम बड़ा सी। उसनों निर्माण बनाण लई धरती नूं ही अगे करना सी। भावें सब कुछ धरती देंदी है फिर भी पैरां दे थल्ले। सारा जीवन धरती ते जीविया जांदा है फिर भी है पैरां दे थल्ले। अपनी होंद जणांदी नहीं, गिणांदी नहीं। इसनों अपनाया मुहम्मद साहब ने। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, पानी रस है। जबान दा रस पानी तो बिना नहीं हो सकता। नासका दा रस सुगंध ये धरती तत दी प्रकृति है। लेकिन पानी दी प्रकृति रस, रसना दा रस ये प्रकृति है। हिंदू ब्रह्म भोज, राजभोग, तरह तरह दे भोग स्वादिष्ट पदार्थ बना के ठाकरां नूं भोग लवांदे ने। उन्होंने इस तरह दे रसां दे बकायदा नाम रखे ने, राज भोग, ब्रह्म भोग, खाणियां दे नाम। बई अज ठाकरां नूं खाना खिलाना है राज भोग, अज ठाकरां नूं खाना खिलाना है ब्रह्म भोग। हैरानगी होंदी है। रस बड़े चाव नाल बनाने, बड़े चाव नाल पेश करने, यह गल वखरी है। बाद विच बड़े चाव नाल खुद खाना है। प्रभु महारस है। भोजन खाण लगे बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं। ब्रह्म भोज, राज भोज, चौकोड़ा चारों पासे ब्राह्मण बैठ के 10-10, 15-15 मिनट, अद्धा घंटा मंत्र पढ़नगे। मंत्र दे भोजन दी उपमा, खाण पीण दी उपमा। हे प्रभु तू भोजन है, तू महारस है, तू महारस है। महारस रसना दा पानी तद दी प्रकृति है। तो अक्सर तीरथ 68 पानी दे कंडे थे। पानी विच इशनान, पानी विच जीवना, पानी नाल ही पूरा संबंध समुचे सनातन मत दा।
सनातन मत दा एक हिस्सा बैरागी योगी इन्हां दे डेरियां च हर वक्त धूणे चलते रहणगे, अग्नि बलदी रहेगी, अग्न प्रचंड रहेगी, हर वक्त रहेगी। ये कहंदे ने परमात्मा महासुहपण है, सत्यम शिवम सुंदरम, उते महासुंदर है। सारा सुहपण अगन तत्त दी प्रकृति है। सारी खूबसूरती अग ते खड़ी है, रोशनी है। किसी न किसी रूप दे चो रोशनी बनस्पति दे झलकदी है, फुल्लां दे झलकदी है, धातुआं दे झलकदी है, मनुखां दे झलकदी है, पशु पक्षियां दे झलकदी है। रोशनी, नूर, अगन तत्त। यह वैरागी मूर्ति नो, खास करके राम ते सीता दी मूर्ति नो 2-2 4-4 घंटे शिंगारनगे, सवारनगे, सजदा करनगे, शिंगार कराई जाणगे। बहुत सुंदर दिसन राम, बहुत सुंदर दिसे सीता, और बार बार शिंगारी जाणगे। हैरानगी है। किधरे सोने दियां मूर्तियां, चांदी दी मूर्तियां, संगे मरमर दियां मूर्तियां, फिर उन्हां दे वस्त्र, उन्हां दे हार शिंगार, उन्हां दी सजावट अद्धा अद्धा दिन लग जाता है। कई दफा ब्राह्मण अद्धी रात नूं ये शिंगारना आरंभ कर देन, सवेरे तक पूरा होंदा है। इन्ना शिंगार, इतना सुहपन, इतना खूबसूरत बनाना कि अखियां टिकियां रह जान। अगन तत्त नूं आधार बना के ये अगे चले। इन्हां ने जो हवन कुंड बनाए अग्नि दे, सब कुछ भेंट करना है अग्नि नूं। तो जद हवन करते ने, कणक भेंट करते ने, घ्यो भेंट करते ने, तरह तरह की सामग्री वो अग्नि दे च पांदे ने। महान है अग्नि उन्हां दी दृष्टि च, उन्हां दी सोचनी च। एक होर तबका भी होया है जैनियां दा, बोधियां दा। इन्हां ने आकाश तत्त नूं प्रकृति, आकाश तत्त दी प्रकृति है शून्य, खाली, खला। इन्हां ने आधार बनाया, खाली कर दो मन नूं, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई सोचनी नहीं, कोई याद नहीं, कोई विचार नहीं, बस खाली कर दो, शून्य कर दो, परमात्मा आपे प्रकट होगा। खाली कर दो, खुदा आपे प्रकट होएगा। जगह ही खाली कोई नहीं तो वस्तु किथे रखोगे। हटा दो विचार, हटा दो सोचनी, कुछ भी याद करने की लोड़ नहीं, किसी भी विचार की लोड़ नहीं, किसी भी सोचने की लोड़ नहीं, हटाण की लोड़ है। इनू परे करो। तो परे करन दा ढंग की बोधियां ते जैनियां दा ये जो बहुतियां नू रास ना आया और फिक्का लग्या, बस सिर्फ बैठ जाओ, अखां मीट के और अपने अंदर झात मारो। विचार केड़े चलदे ने, सोचनी केड़ी चलदी है, यादां केड़ियां चलदियां ने, गहराई नाल देखो ते नहीं चलणगियां। उन्हां दा ये ढंग। कोई 80% बुद्धिस्ट किसी मंत्र दा जप नहीं करते, कुछ भी नहीं जपते, बस बैठते हैं। इन्हों ध्यान साधना कहते हैं। 20% सनातनी प्रभाव हेठ नेपाल दे और जो भारत देश ने मंत्रां दा जप करते हैं। थाईलैंड, कोरिया दे बौद्ध भिक्षु, बर्मा, लंका दे बौद्ध भिक्षु किसी मंत्र दा जप नहीं करते, ध्यान साधना विच बैठ जाणगे। शून्य, खला, ये आकाश तत्त दी प्रकृति है। इंज कह लो, आकाश नूं गुरु बना के परमात्मा तक
मिलन दे वसीले बनाए। मिट्टी नूं रहबर बना के खुदा तक पहुंचण दी कोशिश मुहम्मद साहब दी। पानी नूं अपना मुखिया बना के महारस परमात्मा तक पहुंचना है सनातनियां दा यतन। अग्नि नूं गुरु मन के, अग्नि नूं मुखी मन के, वो रूप है और जो है स्वप्न है, वो ते अत्यंत सुंदरम। तो हवन अग दे च ही सब कुछ भेंट करो, अग दे च घ्यो भेंट करो, अग दे च कणक भेंट करो, अग दे च फुल भेंट करो, अग दे च चंदन भेंट करो, सब कुछ अग्नि दे च भेंट करो, अग्नि दी परिक्रमा करो, अग्नि नूं सजदा करो। अग्नि दा केंद्र है सूरज, तो सूरज सवेरे निकलदियां हथ जोड़ो ते सजदा करो। बैरागी सारे ही करते हैं, सन्यासी सारे ही करते हैं। दीवा जले सजदा करदा है हिंदू। शाम नूं बत्ती जलांदियां घर दे लाइट करदे, हुण संध्या हो गई है, रोशनी जलांदियां हिंदू सिर झुकांदा है। हिंदुआं दा एक तबका अगन तत्त नूं प्रकृति बना के, अगन नूं रहबर मन के परमात्मा तक पहुंचना है। पानी नूं रहबर मन के ईश्वर तक पहुंचना है। आकाश नूं गुरु बना के प्रभु तक पहुंचना है। महावीर महात्मा बुद्ध। इन्हां तत्तां विच एक तत्त नूं प्रधानता गुरु नानक ने भी दित्ती है। पवन गुरु, पाणी पिता, माता धरत मात। बाकी तत्तां नूं गुरु नानक कहंदे ने मां ने, पिता ने, भरा ने। पवन गुरु है। शब्द आवाज पवन तत्त दी प्रकृति है। देही माटी बोले पवन, बोलना पवन करके। मैं एक दिन पढ़ रहा सी डॉक्टर राधा किशन नूं, उन्होंने गुरु नानक बारे लिखा है। वो कहंदे ने गुरु नानक ने कोई धूणे नहीं तपाए, गुरु नानक ने कोई जल धारा भी नहीं की थी, गुरु नानक ने कोई गहरी ध्यान साधना भी बोधियां की तरह नहीं की थी, गुरु नानक ने हवन यज्ञ भी नहीं की थे। गुरु नानक ने सिर्फ गावे है, सुने है। मर्दाना रबाब छेड़, बाणी आई है तो गाण लग पैने। मर्दानिया कुछ सुना, सुनना गावे। राधा किशन दे बोल कहंदा इतने प्राणा नाल गावे है, इतनी एकाग्रता नाल गाया है, इतना जुड़ के गाया है कि गावना ही योग बन गया, गावना ही प्रभु बन गया, गावना ही परमात्मा बन गया। पवन गुरु बन गया, क्योंकि बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलना मिट्टी करके नहीं है, पवन करके। जैसे बांसुरी नूं फूकीए ते बांसुरी वजदी है, हारमोनियम नूं हवा दईए ते हारमोनियम वजदा है, उंज नहीं। शहनाई नूं फूकीए, संख नूं फूकीए ते संख वजदा है, शहनाई वजदी है, उंज नहीं। शहनाई दी तरह, संख दी तरह, हारमोनियम दी तरह या नरसिंगे दी तरह ये जिंदगी दा एक साज है जो पवन करके वजदा है, हवा करके वजदा है। देही माटी बोले पवन। लाश पईए सामने, पानी भी है, मिट्टी भी है, आवाज नहीं रही क्योंकि पवन नहीं रही, प्राण नहीं रहे। देही माटी बोले पवन। पवन तत्त नूं प्रकृति बना के, पवन तत्त दी प्रकृति शब्द नूं आधार बना के, रहबर बना के, गुरु बना के गुरु नानक चले ने प्रभु दे मार्ग ते। इस ढंग नाल जद मैं इन्हां अवतारी पुरुषां नूं पढ़िया, हैरान होया मैं। मिट्टी रहबर है मुहम्मद साहब दी,
आकाश रहबर है महात्मा बुद्ध दा, अग्नि रहबर है सनातनियां दे एक तबके दी, पानी गुरु है बहुत वड्डे तबके दा हिंदुआं दा, पवन रहबर है गुरु नानक दी शबद दी प्रधानता। गुरुद्वारे च कोई धोने नहीं तपाने, कोई हवन कुंड कोई लोड़ नहीं। गुरुद्वारे दे च कोई मन नूं सुन अवस्था दी साधना चुपचाप बैठ जाओ ते अंतर्मुखी हो नहीं। इत्थे ते जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए, कुछ कहना है कुछ सुनना है। इत्थे बोलना है कुछ सुनना है कुछ, तो ये बोलना सुनना पवन तत्व की प्रकृति है। अगर पवन नहीं तो शब्द नहीं हो सकता, अग्नि नहीं तो रूप नहीं हो सकता, अगर धरती नहीं तो सुगंध नहीं हो सकती, महक नहीं हो सकती। मैं हैरान हाँ, दो कवाल जथे ने मुसलमानों के दास के नाल इंडिया चलते ने थां थां ते, दिन दे च पता नहीं कितनी कितनी दफा कई तरह के सेंट बदलते लाते उन्हों का शौक। फिर सिर्फ उन्होंने नहीं, ईद के दिनों च मैं देखिया वो सुगंध वंडते ने। जिन्हां दिनां च ये मुसलमान दो जथे दास दे नाल चलते ने, मैनू भी फाहा रोई दा तरह तरह की सुगंध ला के देंदे ने। पिछले दिने टोरंटो दे पिछले साल एक मौलवी दास दे नाल चलदा रहा, कोई 1.5 महीना। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी उधर नाल सन। मैनू कहन लगा मैं गुरु नानक की बाणी सुननी है, मैनू प्रभावित करती है, थानू इतराज ना होवे तो मैं थोड़े नाल रहना। मैं कहा कोई गल नहीं, नाल रहो। उसदा सदका 5-7 मुसलमान रोज गुरुद्वारे भी आन लग पे। 2 मुसलमान लड़के जो शायराना तबीयत दे मालिक सन, सियाणे सन, उन्हां दे च एक मैनू लंगर वास्ते भी कहन लगा भी साडे घर थोड़े कोल बाणी सुनदे पिया ते जी करदा है, क्योंकि साडे मुरशद ने यह आख्या जिस दी गल चंगे लगे उसनू तुआम नाल सेवा करो, भाओ उन्होंने भोजन खिलाओ। तो मेरा जी करदा है पर मैं डरदा, मैं मुसलमान, तुसी कबूल करोगे? कहंदा हिम्मत भी मेरी इस वास्ते पई है कि थोड़े नाल मौलवी साहब चल रहे हैं, इस करके। मैं कहा छक लेंगे, कोई गल नहीं। ज्ञानी बलविंदर सिंह भी मेरे नाल गए, वो मैनू कहन लगे असी हिंदुआं दे ढंग नाल अग दे भांडे साफ करांगे, अग दिखावांगे, फिर गर्म पानी नाल धोवांगे, फिर थोड़ा जो शौक है वो चीज बनावांगे। पूरी सफाई नाल, पूरी पवित्रता दे नाल असी सुनिया छुआ छात हिंदू रखते ने, छुआ छात सिख रखते ने। मैं कहा नहीं, तेनू भुलेखा है, सिख छुआ छात नहीं रखते। कहने देखे है, क्योंकि देश की वंड तो पहले इस तरह का सी, और अजे भी पुराने बुजुर्गों च ऐसा है। पिछले साल ते कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी दे च भी 2-4 मुसलमान आंदे रहे, तो सरदार दीदार सिंह बैंस नूं कहंदे रहे भी साडे घर लंगर छक लैणगे, साडा जी करदा है। ते दीदार सिंह कहण लगा मैं भी नाल चलांगा, कोई गल नहीं, असीं भी नाल आवांगे, छकांगे। ये मौलवी सवेरे उठदियां सार मैनू सुगंध पेश करदा सी, रोई नाल 1-2 शीशियां कढ़ के सेंट ला के कहंदा ए लो। मैनू कहण लगा जिहड़ा बहुत प्यारा लगे, चंगा लगे, साडे च यही करदे ने, ये पेश करदे ने मुसलमान इस्लामी दुनिया च। ईद दे दिनां च सुगंध वंडदे ने, एक दूजे नूं लांदे ने। हाजी जद हद ते जांदे ने एक दूजे नूं अतर लांदे ने, सेंट लांदे ने। मोहम्मद साहब
सारा दिन महक दे च रहिंदे सन, सुगंध दे च रहिंदे सन। कहंदे सन खुदा सुगंध है, खुदा महक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिक्र किया है, वो सिर्फ महक नहीं, मूल रूप दे च गुरु है, शब्द है, फिर महक है, रूप है, फिर रस है। कुंगू की काया रत्ना की ललता अगरवास तन सास। वाकई जद प्रभु प्रगट होंदा है तो मनुख दे अंदर सुगंध भी प्रगट होंदी है। मनुख दे अंदर जद परमात्मा प्रगट होंदा है तो महारस भी प्रगट होंदा है। मनुख दे अंदर जद परमात्मा प्रगट होंदा है तो महासंगीत भी प्रगट होंदा है। ये हो नहीं सकता ऐसा मनुख संगीत दा आशिक ना होवे या संगीत दी सूझबूझ ना रखदा होवे। रविदास चौक दे च बैठ के जुतियां गणदा है, परमात्मा प्रगट होया है तो गीत संगीत भी अंदरों प्रगट होया है। जिन्नी बाणी रविदास दी है, कविता दे च संगीत दे च, और राग उसने खुद दर्ज कीते ने, और गा के इस बाणी नूं प्रगट कीता है रविदास ने। कबीर ते जुलाहा है, सारा दिन खड्डी ते कपड़ा ही बुनदा है, पर परमात्मा प्रगट होया उस दे अंदरों भी गीत बन के, संगीत बन के। हैरानगी शायरी किथों सीखी कबीर ने, कौन सिखादा है? जुलाहे नूं किसने सिखाना सी, और संगीत किसने सिखाना सी, और वो राग बारे बहुता कुछ कहंदा भी है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते जदों महारस है तो एक रस नहीं है, महारस होके प्रगट होवेगा। वो नाद रस भी है, वो सुगंध रस भी है, वो रसना रस भी है, वो शब्द रस भी है, और इस तो इलावा वो रूप रस भी है। दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन अवर न देखा। हे हरि तू ऐसा है, तेनू देख देख के मैं रजदा नहीं। तू इतना सुंदर, ऐसो सुंदर बरन न साखों, ताकि उपमा जात न कहोरी। गुरु अर्जन देव जी, इतना सुंदर अखां मेरियां हटदियां ही नहीं। ऐसो सुंदर बरन न साखों, ताकि उपमा जात न कहोरी। पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी चौ बोले, तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मेरी अखां हटदियां ही नहीं। तू ऐसा महासंगीत है, नाद है, कान हटदे ही नहीं। तू ऐसा महारस है, जबान अलग ही नहीं आती। लेकिन मैं अर्ज करा, वो जैसे नाम प्रगट होंदा है ते महारस प्रगट होंदा है, सुगंध दे रूप विच, रस दे रूप विच, नाद दे रूप विच, अनंत रूपां दे विच, और महक दे रूप विच। गुरु नानक ऐसा ख्याल जो है विचार सानू देंदे ने, वो रूप है, वो नाद है, वो रस है, वो सुगंध है, वो शून्य है, महान है। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाई अचर्ज बिस्माद। महात्मा बुद्ध दे शून्य भी छू लिया गुरु अर्जन देव जी ने। महारस दी भी गल, रूप दी भी गल, नाद दी भी गल, लेकिन प्रधान रखिया गुरु नानक ने नाद नू, पवन नू। पवन गुरु पाणे पिता, माता धरत महत। वो जो महारस है वो सच है, बाकी सारे रस बेरस हो जाते हैं। बाहर दे सारे रस बेरस हो जाते हैं। कोई एक तस्वीर वेखी एक दफा, फिर दूजी दफा, फिर तीजी दफा, हुण वो रस नहीं रहा। कोई सुनिए संगीत दी धुन पहली दफा, दूजी दफा, तीजी दफा, वो रस नहीं रहा। ये तो हकीकत है। हर रूप बेरूप हो जाता है, हर नाद बाहर दा रस गवा बैठता है। और सियाणे मुश्क दे रसिया, सुगंध दे रसिया भी कहते ने, एक तरह की सुगंध तो भी मन भर जाता, कुछ नहीं, मन हट जाता है।
वो सुगंध भी बेरस हो जाती है, वो संगीत भी बेरस हो जाता है। पर परमात्मा का नाम जद प्रगट होता है तो जिहड़ी महक, जिहड़ा रूप, जिहड़ा रस अंदरों प्रगट होता है, कदी पुराना नहीं होता, कदी मैला नहीं होता। पर सवाल ये पैदा होता है वो किवें प्रगट होवे, वो सच किवें प्रगट होवे कि उस सच दे नाल महारूप प्रगट होवे, उस सच दे नाल महामहक प्रगट होवे। वो कोई सच फिक्का ते नहीं, महक तो बिना ते नहीं, रस तो बिना ते नहीं। और जो रस तो बिना है, ना मनुख वेखण नूं तैयार है, ना मनुख सुनन नूं तैयार है, ना मनुख खाण नूं तैयार होवेगा। रस ही नहीं आया। मैनू पहली दफा एक आश्रम विच एक ऐसी चटनी परोस के पेश की गई और आख्या गया ज्ञानी जी जरूर खाओ तुसी, ये फायदेमंद बड़ी है। पर जिवें मैं मूँह च पाई कौड़ी जहर, मैं कहा हद हो गई। ये चटनी कहंदे निम दे पत्तियां दी बनाई है, चंगी रहिंदी है। मैं कहा जिन्ना सारा भोजन है ते सारे नूं बेस्वाद कर देंदी है। कहंदे वो कोई गल नहीं, पर ये लाभकारी बड़ी है। मैं कहा लाभकारी है ते जिन्हां नूं लाभ चाहिदा उन्हां नूं दिओ, मैनूं नहीं चाहिदा। निम मैं अर्ज करा जिस दे च रस नहीं मनुख खाण नूं तैयार नहीं होवेगा, जिस दे च रस नहीं मनुख सुनन नूं तैयार नहीं होवेगा। अज ही पता नहीं किहड़ी थां ते कोई कह रहा सी भी सुन रहे सी कीर्तन, रस नहीं आया किसी जगह। और पता है कहण दा ढंग भी उन्हां दा सोहना सी। कहंदे कहीं की ईट कहीं करोड़ा, कोई किधरों तबले वाला इकट्ठा कीता, किधरों वाजे वाला इकट्ठा कीता है। एक दी सुर पूरब नूं जा रही, एक दी पश्चिम नूं जा रही है, तो हुण सुणन नूं साडा जी नहीं करदा। सीधी गल कर दित्ती। ते जे अगर मजबूरन सुनना भी पे तो कितने क देर सुनेगा। रस नहीं तो मनुख सुनन नूं तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख खाण नूं तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख वेखण नूं भी तैयार नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया, कतई मनुख नहीं वेखेगा। रस नहीं तो मनुख स्पर्श करन नूं भी तैयार नहीं, रस नहीं तो मनुख अपने नासका दे नेड़े भी लियाण नूं तैयार नहीं। मनुख नूं महारस चाहिदा है। परमात्मा महारस है, परमात्मा महासंगीत है, परमात्मा महारूप है, परमात्मा महानाद है। इंज कह लो सारे रसां दी खाण है। जद भी किसी दे अंदर प्रगट होंदा है भरोसा नहीं बजेगा। कारण ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जिस दे अंदर प्रगट हो जाता है उस दा ही विश्वास बजदा है, उस तो पहले विश्वास थिड़के ही रहिंदा है, थिड़के ही रहिंदा है, बजदा नहीं। रोज रोज सत्संग करिए, रोज रोज कथा कीर्तन सुनिए ताकि विश्वास बज जाए। ते जिस दिन विश्वास बज जाता है, जां के हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया, प्रगट हो जाता है। फिर ऐसा विश्वास कदी डोलदा नहीं, ऐसा भरोसा कदी डोलदा नहीं। और उस दिन अंदर एक पश्चाताप जरूर जागदा है, इतना महारस ते इस तो मैं वांझा रहा, इतना महारूप ते इस तो मैं वांझा रहा। बैरूनी ढंग नाल समझाण दी कोशिश हिंदुआं ने भी की थी, इस्लाम ने भी की थी। पढ़िए नमाज ते की मिलेगा? जन्नत। तो जन्नत विच की ने कहंदे ने उत्थों दी हवा ही खुशबूदार है, सेंट लाण दी लोड़ नहीं। उत्थे हूरां ही हूरां ने, हैरानगी। उत्थे कंचन दे महल ने, उत्थे नाद साजां दी आवाज हर वक्त चल रही है। ठाकर हमरा सद बोलंदा। जन्नत दा नक्शा तो इसे ढंग नाल खिंचे, स्वर्ग दा नक्शा भी यही है। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
बैरूनी ढंग नाल जो समझाण की कोशिश की वो यही है। गुरु नानक ने ये बैरूनी व्याख्या नहीं की थी। जिंदगी बड़ी छोटी है ते मनुख नूं पहले बाहर दा लालच देईए ते काफी समय इस बाहर दे लालच दे विच बतीत करे ते फिर ये अंतरमुखी होवे। साहब कहते नहीं, सीधा शब्द नाल जुड़, तेरे अंदरों ये महारस प्रगट होवेगा, जन्नत प्रगट होवेगी, ये स्वर्ग प्रगट होवेगा। क्यों नहीं प्रगट हो रहा? वो सच जिस दे च सब कुछ है प्रगट क्यों नहीं हो रहा? मन मैला है। तो इसनूं किवें धोईए? मन दियां मूल समस्यावां भारत दे ऋषि मुनियां ने 4 मनियां ने, जिस कारण करके सच प्रगट नहीं हो रहा। केड़ियां? प्रथम मन मैल है, दूसरा मन कदी चुप ही नहीं करता। 2 बंदे आमने सामने बैठे होन ते दोवें ही बोली जान तो पल्ले कुछ भी नहीं पेगा। एक चुप करे, एक बोले। जबान बोले वाहिगुरु वाहिगुरु, मन चुप करे, मन सुने। तो क्षमा करनी, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर दी, मन इस तो बिल्कुल विपरीत कुछ बोलता है, हर एक दा बोलता है। करके देखना सवेर। जबान बाणी पढ़दी है, मन नहीं पढ़ता, वो कुछ होर पढ़ता है। रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जप दिए, राम राम जप दिए, मन कुछ होर जपदा है। मन दा जाप जबान दे जाप नाल तालमेल नहीं खांदा ते मन सरोता नहीं बनदा। जबान वक्ता बन गई वाहिगुरु वाहिगुरु, मन सरोता नहीं बनदा तो कौन सुने? तो जबान दा बोला होया हवा चुड़ जांदा है। एक चुप करे, एक बोले। तो दूजी समस्या, मन चुप नहीं करता। दूसरी पंक्ति च यही खुलासा है। तीसरा, मन रजदा ही नहीं किसी भी पदार्थ तो, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं रजदा। चौथा, मन नूं अपनी सियाणप दा आहंग बड़ा है, अहंकार बड़ा है। मैं बहुत जानदा, बहुत जानदा, और इतना कुछ जानदा कोई होर नहीं जानदा। कोई भी मनुख अपनी अकल कम नहीं मनदा, यह भी मैं अर्ज कर दिया। कोई भी मनुख अपनी समझ घट नहीं मनदा। अगर घट मनन लग पए तो कहते हैं उतनी उसके अंदर निर्माणता प्रगट होने लग पैंदी है। सुकरात कहा करदे सन, जद मैं बच्चा सी तो बच्चियां दी महफिल विच बैठ के मैं दावा करदा हुंदा सी मैं सब कुछ जानदा, कुछ भी पुछो, कोई भी सवाल करो मैं दसदा। यही सुकरात कहंदा है जद मैं जवान होया ते जवानां दी महफिल विच बैठ के मैनू कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा, मैनू नहीं आउंदा। सारे सवालों का मैं जवाब नहीं देंगा क्योंकि सब कुछ मैनू नहीं आउंदा। कुछ ऐसा भी है जो मैनू नहीं आउंदा। यही सुकरात कहंदे अज मैं बुढ़ा हो गया ते बुढ़ियां दी महफिल विच बैठ के मैं ऐलानियां कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानदा, कुछ भी नहीं जानदा। मैं किसी भी एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सकता। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। ऐनी निर्माणता, इतनी विनम्रता। मन दियां ये 4 समस्यावां, मन मैल है, मन चुप नहीं करदा, मन रजदा नहीं, और मन नू अपनी सियाणप दा तकब्बुर बड़ा है, गरूर बड़ा है। मैं बहुत कुछ जानदा। इस कारण करके वो महारस, वो महासंगीत, वो महारूप, वो महाशक्ति प्रगट नहीं होती। तो इस मन नू किवें निर्मल कीता जाए, किवें चुप कीता जाए, किवें तृप्त कीता जाए, ते किवें इसदी जिहड़ी सियाणप है इसदा बोध कराया जाए। ते कुछ भी नहीं, ते सागर दे सामने एक चम्मच पानी दी है, कुछ भी नहीं। तेरी सारी जानकारी ज्ञान दे सागर दे चों एक चम्मच तो ज्यादा नहीं है, एक चम्मच पानी तो ज्यादा नहीं है। बहुत कुछ पिया जानन नूं, लेकिन मनुख कह देंदा मैं बहुत कुछ जानदा, बहुत कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा।
उसका इस तरह का कहना ये तो चम्मच पानी दी कह रही है, सारा सागर मेरे विच आ गया, इस चम्मच दे च आ गया, कुछ बचिया ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ मेरे विच आ गया, इस चम्मच दे च आ गया। नहीं, मनुख दी अकल एक चम्मच तो ज्यादा नहीं, ते ज्ञान ते सागर दी तरह जानन नूं ते बहुत कुछ पिया। तो मन नूं जानकारी दा अहंकार है, मन नूं पदार्थां दा लोभ है, मन चुप ही नहीं करता, बोली जांदा। इस चक्कर च ना पैना कि मन कीर्तन सुनदा पे, सुने ते समाधि लीन हो जाएगा, नहीं सुनदा। गुरु का कीर्तन हो रहा, मन अपना कीर्तन आप अंदरों करी जा रहा, कुछ होर दा होर, जो कीर्तन नाल मिल नहीं खांदा। अमृत वेले मनुख दी जबान जप कर रही, हुण मन सरोता बने, सुने। जद मन सरोता बने तो इनू कहंदे ने मन सुरत दे च है। सुनना सब तो पहले, ते सुनदियां बोध हासिल हो गया तो कहंदे ने सुरत मिल गई, इसनू सुरत आ गई है, भाव समझ आ गई, सुनदे ही समझ आएगी, समझ आ गई है। फिर कहंदे ने इसकी सुरत लीन हो गई है, कि जो सुन रहा सी उस विच लीन हो गया, उस ਇਹਦਾ ही रूप हो गया। सुरत दे ये तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत लीन होना। एक शब्द दे तीन अर्थ ने, और तिन्ना अर्थां दे च ਇਹ शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च बार-बार आउंदा है। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत लीन होना। जिसनू सुनना है उसनू समझना है, जिन्नू समझना है उस विच लीन हो जाना है, उस ਇਹਦਾ ही रूप हो जाना है। तो प्रथम ते सुनना है, सुरत समझना बाद दे चावेगा। जितनी गहराई नाल सुनांगे उतनी गहरी समझ की प्राप्ति होगी, और जे गहराई दे समझ आ गई तो फिर लीनता नसीब हो जाएगी, समाधि। ਇਹਦੀ ते सुरत जुड़ गई, ਇਹਦੀ ते सुरत लीन हो गई। गुरु नानक ने प्रथम सुनन देते ही सब कुछ खड़ा कीता है, बोलना ते सुनना। पवन तत्त नूं गुरु मन के, इसनू रैवर बना के गुरु नानक ने बाकी महारस नूं प्रगट करने दे वसीले बयान कीते ने। लेकिन गुरु नानक अनमतियां दा भी जिक्र करते ने। बाकी की कहंदे ने, तो ये जिहड़ी पहली पौड़ी है, बाकी की कहंदे ने, ते सतगुरु दा अपना की ख्याल है, मैं कल थोड़े सामने रखांगा। भूमिका दे च मैं समा ले गया। पौड़ी अपने आप दे च महान है। सोच है सोच न हो वई, जे सोची लखवार, चुप है चुप न हो वई, जे लाहे रहा लिवतार। भुखया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया भार। सह सियाणपा लख होए, तां एक न चले नाल। ये सब कुछ नहीं तो फिर क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीओ, सच किवें प्रगट होवे, किवें कूड़ दी मैल उतरे, ते किवें सचियार बणीए। जो कुछ अनुमतियां दी विचार ते जो कुछ गुरु नानक देव जी महाराज दी देन कल तुहाडे सामने निखेड़ा करांगे। अज इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।